اب ان کو پھر سے ایک دفعہ ایڈ ہاک جج لگایا جا رہا ہے. اس پہ لوگوں کی واقعتاً اور بار میں اگر آپ آج بھی کنسنسس لے لیں تو سب سے زیادہ آپ کو کنسنسس اس بات پہ ملے گا کہ یہ ایک اصول کی بات نہیں ہے. اور خاص طور پہ یہ بات کہ کبھی ججز نے اس طریقے سے ریزولوشنز نہیں پاس کیے. یہ ججز کی انا اور ججز کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے. اچھا اب میں سوال پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے چھوٹی سی ایک بات، کیا ہم اس ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کانسٹیٹیوشن کا رول کی سپریمیسی ہے کہ نہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کیا ایک بار ایسوسی ایشن کی ریزولوشن جو کہ آج سے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے کی ریزولوشنز تھی یا اس کے بعد بھی اگر ہوئی ہیں ان کی حیثیت زیادہ ہے یا آرٹیکل 188(2) کی، جس وقت ججز کیس میں ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹس کی اس لیے رد کیا گیا کہ وہ ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹس اگینسٹ سینکشن پوسٹ ہوتی تھی. اب جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے انڈر آرٹیکل 182 جس کو انڈورس کیا 18th امینڈمنٹ میں 19 میں انڈورس کر کے ایک فرد چیف جسٹس سے لے کے انہوں نے کمیشن کو دے دیا یہ پاور. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم کسی ایک سیکشن آف سوسائٹی 8, 10, 15 بندے یا 500 بندہ مل کے وہ کہے کہ ہم آئین کو نہیں مانتے؟ جی آسما صاحب، کیا یہ غیر آئینی ہے یا غیر اخلاقی ہے؟ آپ اس پہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین میں بھی، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے سوال پوچھنا ہے تو آپ ضرور پوچھیے گا. میں مسٹر جورسٹ کے سوالوں کا جواب یہاں دینے نہیں آئی. ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک اور یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. یہ جو ہے نا، یہ جو ایک جرنلسٹ پارٹی بن رہے ہیں اور کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں بار ایسوسی ایشن سے، یہ اپنی اوقات میں رہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے اوقات میں آپ بھی ذرا تھوڑا سا سنبھل کے بات کریں. آپ بار ایسوسیشن کی پریزیڈنٹ اگر بن گئی ہیں تو اپنے آپ کو ایسا خدا بن گئی ہیں. آپ اگر جیو میں بیٹھ کے نہیں یہ کیا لہجہ ہے کہ اپنے اوقات میں رہے اخبار میں؟ یہ کیا بات ہے؟ میں بات کر آپ بار ایسوسیشن یہ کیا طریقہ ہے؟ میں بالکل اس طرح گفتگو نہ کریں. آپ کون ہے سوال پوچھنے والے؟ آسما صاحب، میں اخبار نویس ہوں، میرا کام ہے سوال پوچھنا، اور میں اس ملک کا ایک شہری ہوں. کون ہے آپ؟ یہ کیا بات ہے؟ کون ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ یہ کوئی لہجہ ہے؟ ایک منٹ ہے ہارون صاحب. ایک انسٹیٹیوشن کو آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ جی آسما صاحب، ہارون صاحب ایک منٹ، میں باری آپ کو اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو. آسما صاحب، ہمیں پتا ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی کون بات کرتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ بات کون کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ ججز کو تو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، گورنمنٹ کو کیوں نہیں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ ڈیوس کے کیس کو کیوں نہیں فوکس کیا جاتا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ کوئی اور جس کے اوپر پورا ویسٹ ان مسائل کے اوپر خوش ہوتا ہے ان کو اجاگر کون یہاں پہ کر رہے ہیں. ہمیں ساری چیز کا پتا ہے. اگر آپ پریزیڈنٹ بار ایسوسیشن دیکھیں ایک چیز، اچھا ایک منٹ، نو رول بات ہو نہیں سکتی، ہیوملیٹ ان کو نہیں کرنا چاہیے. ان کو طریقے سے بات کریں گی تو ہوگی، ایسے نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ کوئی لائسنس ٹو کل نہیں ہے ان کے پاس، لائسنس ٹو کل نہیں ہے ان کے پاس کہ جو مرضی بولتی ہے. بالکل وہ نہیں بولتی، ناٹ ایٹ آل، دس از ناٹ پاسبل. روپ جہاں پہ چلتا ہے وہاں پہ چلائیں. ہاں جو بھی. آسما میں سوال پوچھ رہا ہوں، دیکھیں آسما صاحب میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک سلجھے ہوئے انداز سے ایک بات کرنی چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا جو ایڈ ہاک ججز کی تقرری ہے وہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، ایڈ ہاک کی جو تقرری ہے آئین میں لکھا ہوا ہے، مگر وہ بڑی ایکسپشنل سرکمسٹانسز میں ہے، کسی ایک بندے کو سوٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی ایک بندے کی نوکری نکالنے کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو پریس ریلیز آئی ہے سپریم کورٹ کی، اس میں کہا گیا کہ کیسز کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس وجہ سے ہمیں کورم پورا کرنے کے لیے ججز چاہیے. کیا یہ جو انہوں نے آرگومنٹ دیا ہے آپ اس سے ایگری نہیں کرتی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کیسز کی تعداد صرف رمدے صاحب کی ریٹائرمنٹ کی عید پہ ہی آئی ہے، یہ پہلے بھی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور اب یہ بات کرنا اس وقت، اور اگر آپ کو ایڈ ہاک ججز چاہیے تو پھر اور بھی ججز ہیں. ایک ہی جج کو بار بار لگانا یہ بذات خود ایک
अपने ही जज को कंट्रोवर्शियल करना। बेसिकली आपका एतराज जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब की दोबारा जो उन्हें एक्सटेंशन दी जा रही है उस पर है सुप्रीम कोर्ट। मेरी बेसिकली आपसे मैं नहीं बात करी, एंकर बात करेंगे तो मैं उनको बता दूंगी। मैं ही बात कर रहा हूँ, बोल ही नहीं रहा, मैं बोलना भी नहीं चाहता यार। मैं अफसार साहब मैं यकीन करके नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक बात एक और आपको बात बता दूं, ये हमें इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। ये कोई एक फर्द अपॉइंट नहीं करेगा, जुडिशल कमीशन करेगा। ये पावर जुडिशल कमीशन के पास है, और जुडिशल कमीशन में एक फर्द अकेला फैसला नहीं करता, उसमें गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब ये नहीं हो सकता कोई एक फर्द फैसला करे कि मेरी मर्जी के फैसले सुप्रीम कोर्ट सुनाए, मेरी मर्जी के लोग मैंने तो बात भी नहीं की, मैंने फिर बात नहीं की तो मैं कहती है और बोल रहा है। मैं ही सवाल पूछ रहा था आसमा साहिबा, लेकिन मैंने तो सवाल ही नहीं किया, मैं तो माफी मांगता हूँ यार। अच्छा अभी मैं तो माफी मांगता हूँ यार, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, माफ कर दें मुझे यार। अंसार साहब छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात दोबारा करते हैं इसी पे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले थोड़ी सी गर्मा गर्मी पैदा हो गई थी, और मैं यही बात आज हमारा मौजू भी यही है कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक थोड़ी सी कशमकश हमें दिखाई दे रही है। क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है या नहीं? हारून रशीद साहब आप बताइएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को या एक जो लीगल फ्रेटर्निटी है वकला बरादरी, उसको एतराज हैं एक जज पर, तो क्या ये जरूरी है कि वही उसी जज का नाम बार बार एक्सटेंशन के लिए आए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए जी, जज किसका है? जज पाकिस्तान के अवाम का है। जितना वकीलों को हक है इतना लोगों को हक है। आप लोगों से पूछ लें क्या वो जस्टिस रमदे को चाहते हैं या नहीं चाहते। एक आम आदमी के सर में भी 3500 सीसी का ब्रेन होता है और एक वकील के सर में भी इतना ही होता है। रह गई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, तो 80 करोड़ रुपए हमारे उसके इलेक्शन पे खर्च हुए हैं, हम पाकिस्तानी अवाम के, इनको जिताने के लिए। इनकी राय की तो रत्ती बराबर भी हैसियत नहीं है। ये हुकूमत की हमायत से जीते हैं। वकला बिरादरी की राय की अलबत्ता हैसियत है, और उनसे आप सर्वे कर ले वो क्या चाहते हैं। देखिए इसमें दो ओपिनियंस हैं, ऑब्वियसली इसमें दो ओपिनियंस हैं। एक तरफ ये है कि वो बहुत अच्छे जज हैं, बहुत बोल्ड जज हैं, जिनकी इस वक्त जरूरत है। मेरा ख्याल है मेजॉरिटी यही समझती है। अलबत्ता कुछ लोग जो हैं, ये उनका एक एतराज है जो टेक्निकली तो सही हो सकता है कि भाई एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, मगर ये इस बात को हम कबूल नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट बार की सदर कह रही है तो इसलिए उसको नहीं। लेकिन अगर जजेस, ये बताइएगा कि एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो रिटायर्ड अफसरान है उनको दोबारा ना लगाया जाए, तो क्या खुद अपने ऊपर ये असूल नहीं लागू होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के? जनाब वाला, हम ट्रांजिशन में हैं। इस वक्त सबसे अहम अदारा हुकूमत नहीं है तब्दीली के लिए। सेहतमंद तब्दीली का अदारा अदालत है। सुप्रीम कोर्ट बार भी नहीं रही है, अब नहीं रही, कभी थी। और सिविल सर्विस नहीं है, सियासी जमातें नहीं है। अगर किसी पे भरोसा है तो सुप्रीम कोर्ट पे है। छोटी सी एक बात, एक क्लैरिफिकेशन, चूंकि इन्होंने बात की, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की री एम्प्लॉयमेंट एस्टा कोड और सिविल सर्वेंट एक्ट के मुताबिक मना की गई है, उसको डिस्करेज किया गया है। और एडहॉक अपॉइंटमेंट ये जो जजेस की है अगेंस्ट सैंक्शन पोस्ट नहीं होती, इसके लिए तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इस पे आसमा साहब ये तो आईनी बात है। पहले शर्मिला फारूकी साहब ये बताइएगा कि जो ये माहौल लग रहा है, जो हमने शुरू में दिखाया कि वजीर आजम साहब ने जिक्र किया है चीफ जस्टिस के साहबजादे का, और फिर अब्दुल कादिर गिलानी जो वजीर आजम के साहबजादे हैं, और मुनिस अलाई जो चौधरी परवेज अलाई के साहबजादे हैं, ये साहबजदगान की सियासत हो रही है आपस में, या क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए अफसार साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत में और अदलिया में कोई महाजराई हो रही है, बराए मेहरबानी इस तासुर को मजीद फरोग ना दें, क्योंकि ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, ये इदारों के मफाद में है। दूसरी चीज ये है कि आपने शुरू में बताया कि जी जुडिशल कमीशन ने इन 4 मोहतरम जज साहिबान की तकर्री को रद्द किया है, उनका ताल्लुक फला जज से, किसी के बहनों या किसी के दामाद हैं। तो देखिए इस मुल्क में हर कोई किसी न किसी का कोई ना कोई रिश्तेदार है, तो इस बिना पर तो कोई चीजें रद्द नहीं होती, उनके अपने रीजन होंगे। तो पिटीशन फाइल हुई है, ये पिटीशन फाइल हुई है आज। ठीक है। और इसमें तो यहाँ पर ये एक रूटीन बन गया है, रात को ये बना के रखते हैं, सुबह सुबह हर चीज से फाइल जाती है, आप पे भी कल हो जाएगी, कोई बड़ा इशू नहीं है। तीसरी चीज ये है कि जिस तरीके से अंसार अब्बासी साहब ने यहाँ पर फरमाया कि जस्टिस रामदे साहब ने इतना बहुत वोकल है। पहली बात तो ये है कि क्या जज साहिबान को वोकल होना चाहिए? दुनिया में जुडिशरी होती है, जजेस टेक देयर जजमेंट। ठीक, जिस तरीके के ऑब्जर्वेशन
जिस तरीके के बयानात मोहतरम जज साहिबान के तरफ से आ रहे होते हैं डेली के हिसाब से, और तब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, रिस्पेक्ट देती ये हमने दुनिया में कहीं नहीं देखी। जजेस डोंट स्पीक, जजेस स्पीक टू द जज। जजेस के फैसले, जजेस खुद नहीं बोलते फैसले, उनके फैसले जो होते हैं वो उनके वर्ड्स होते हैं, वो उनका एक सोच होती है, वो अपने फैसलों के थ्रू बात करते हैं। चौथी चीज ये है कि देखिए अस्मा जहांगीर साहबा से जिस तरीके से गुफ्तगू की गई, माजरत के साथ आई हैव सीवियर रिजर्वेशंस ऑन दैट। काइंडली डू नॉट अंडरमाइन द अथॉरिटी, द सैंक्टिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार और इट्स प्रेसिडेंट। ये तरीकेकार नहीं है बात करने का, खास तौर पर हमारे हजरात सामने बैठे हैं। आपका अपना एक इंस्टीट्यूशन है, आप मीडिया को बिलोंग करते हैं, आप अपने इदारे, अपने इंस्टीट्यूशन, अपने प्रोफेशन को इज्जत दें, उस तरीके में दायरे कार में रहें। इस तरीके से अस्मा साहिबा जो है वो एक बहुत ही काबिल एहतराम खातून है। पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बार की प्रेसिडेंट खातून बनी, लेट्स गिव हर दैट क्रेडिट। और इसमें ये कोई बात नहीं है कि हुकूमत ने 80 करोड़ खर्च करे हैं और हुकूमत की जो है पैरवी से या उनकी सिफारिश से या उनकी सपोर्ट से बनी। नो, शी हैज कम ऑन हर ओन स्ट्रेंथ एंड शी ऑलवेज फॉलो स्टेट। जहां पर हुकूमत को ऊपर बात करनी हुई हो, अगर हुकूमत ने कोई गलती की है तो वो हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाती है, और उनकी एक ऑब्जर्वेशन है, बाहर की एक ऑब्जर्वेशन है, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सबसे अहम चीज ये है एडहॉक जजेस। देखिए जस्टिस रामदेव की बात नहीं है, लेट्स नॉट जस्ट से जस्टिस रामदेव साहब यहाँ पर, बात ये एडहॉक जजेस होने चाहिए कि नहीं। मुझे याद है कि 96 में एक केस हुआ था अल-जहाद ट्रस्ट का, जावेद शाह साहब थे, और उसमें एक फैसला सामने आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को रिवर्स करती है या कोई ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को आई डोंट नो कि मैं आसमा साहबा से मैं इस केस का जिक्र शर्मिला एक चीज मैं भाई बात बता दूं कि देखिए आपके प्रोग्राम बैठे या दीगर तबकों के बाद तो हम फैसला नहीं करेंगे ना। 19वीं तरमीम के बाद एक कमीशन है, जुडिशल कमीशन, जो उसका फैसला करेगा, तो आया उसमें जाने दें, उसको फैसला करने दें। अभी मैंने भी कई दफा देखा है कि जजेस बैठ के काबिल एहतराम है, वो करारदादें पास कर रहे हैं। ये काम तो असेंबलियों का है करारदाद पास करना, लेकिन और सेड एंड डन हमारे काबिल एहतराम है, जो सही होगा, जो जुडिशल कमीशन डिसाइड करेगा वही होगा। हाँ, ऑब्जर्वेशन देना मीडिया का भी काम है, ऑब्जर्वेशन देना बार का भी काम है, ऑब्जर्वेशन देना सियासतदान का भी काम है, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आसमा साहबा से बात करना आसमा साहबा ये बताइएगा कि इसका अब इलाज क्या है। जो एक हमें थोड़ा सा लग रहा है कि अगर करारदाद पास कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने और जुडिशल कमीशन में भिजवा दिए जाते हैं ये दोनों नाम, तो फिर वो क्या दोबारा जज बन जाएंगे और ये फिर कश्मकश जारी रहेगी, या आपके ख्याल में कोई ऐसा तरीका है जिससे हम एक महज़ब अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं और ये जो एक महाजराई किसी कैफियत पैदा हो रही है ये ना हो? देखिए, बात पहली मैं आपसे एक बात बड़ी ठोक के कहूंगी कि जिस तरीके से आप ये लाते हैं लोगों को जो कि ये समझते हैं कि जो वकला हैं वो पैसे खा के किसी को अपनी लीडर बनाते हैं, मैं इनको कहना चाहती हूँ कि ये हमारी तौहीन कर रहे हैं वकला बरादरी की। दूसरी बात ये है कि ये दोनों साहब जो हैं ये कभी कोई इलेक्शन लड़के मुझे दिखा दें, ये तो जहां से आते हैं वहां तो माशाल्लाह बहुत पैसे हैं, तो इनको तो कोई सिवाय इसके कि ये आप लोग उठा लेते हैं, इनकी क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो माजरत के साथ आप जब रिप्रेजेंटेशन के लोग बुलाते हैं तो उनके साथ वही लोग बुलाए जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात यह कि इनका मुंह इतना खुल गया है और ये फिर किसको रिप्रेजेंट करे। मैं तो पहले समझती थी कि देखे ये हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है ना। अब देखें आसमा साहब, मैं लहजा है ना इसका, अपने खातून होने का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करें। आपको पता है हम किसी पब्लिक सेंटिमेंट बिल्कुल हमने कोई बात नहीं की, ये बार बार नाजायज बिल्कुल नाजायज तरीके से ये कर रही है। शाइस्ता लबो लाजा सीखें बाहर की आप एक मिनट मुझे कोई शाइस्तगी सीखें थोड़ी सी। हारून साहब मुझे आप शाइस्तगी कीजिएगा। आसमा साहब मैं आप साथ बात कर रहा हूँ, आपको उर्दू आती है ना, आपको अंग्रेजी आती है ना, आपको कोई ख्याल है? हमारी पूरी कम्युनिटी को ये एक इल्जाम, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी कम्युनिटी की नहीं। आसमा साहब देखिए डायरेक्ट अगर बात ना करें, आसमा साहब मैं ये बात से चाह रहा हूँ अगर हम प्रोग्राम के मौजू पर रहे, नहीं किसने बात किया उससे? नहीं उन्होंने किया, उनको कहें कि वो देखें गलत बात कर रही है, वो बार बार गलत बात कर रही है।
ये बड़ी गलत बात है। इनसे यही देखें, डिफरेंस ओपिनियन के साथ जिंदा रहना सीखना चाहिए। आपको दूसरे के व्यूज सुनने का हौसला होना चाहिए। आपको ये जरूरी नहीं है कि जो अखबार रिलीज आपके लिए तालियां बजाएं वही अच्छे होते हैं, और जो अच्छे नहीं है वो पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं। आपको थोड़ा सा हौसला रखें, थोड़ा सा डिफरेंस ओपिनियन सीखें, दूसरों की राय को इज्जत देना सीखें, आर्गूमेंट्स लें। अगर किसी चीज के ऊपर आर्गूमेंट्स करें, ये नहीं है कि राज आपके लिए ढोलक बजाने के लिए कोई नहीं बैठा यहाँ पे। आसमा साहिबा, मैं आपको कौन किसने, आप जरा जाए ना अपने प्रेस क्लब में जाके भाई जाए, आप लड़े, इलेक्शन जो लड़ना है। हमारा जो काम है हमने वही करना है। जाए आप लड़ लें, आप लड़ लें इलेक्शन जो लड़ना है, लड़ लें आप। नाजरीन, आप लड़ लें इलेक्शन जो लड़ने हैं। वक्त हमारा काम ये ब्रेक नहीं के है। बाद दोबारा आते हैं।